السلام علیکم سالدوں، ایف ایس سی پری میڈیکل سیکشن ہے۔ ہم نے سفر نامہ بیگم اختر ریاض الدین کا لکھا ہوا ہوائی کل سے شروع کیا ہوا، آج اس کے بقیہ حصے کی طرف آئیں گے۔ بیگم اختر ریاض الدین جب ہوائی گئیں تو انہوں نے وہاں پر کیا دیکھا، اس حوالے سے وہ اپنے تجربات ہمارے ساتھ انہوں نے اس سبق میں بیان کیے، اور ہمیں وہ اس میں بتاتی ہیں کہ وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے، وہاں کا انداز کیسا ہے، اور بڑے لطیف انداز میں محاورات کا خوبصورت استعمال کرتے ہوئے ہلکے مزاح کی ایک لہر اس میں موجود ہے۔ مصنفہ کہ میاں وہاں پر اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے اور پیچھے بیگم اختر ریاض الدین بھی وہاں پر گئیں۔ جاتے ہوئے سفر میں جو ان کے ساتھ جیسا معاملہ ہوا اسے بھی انہوں نے بیان کیا، جس کے بارے میں ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارا آغاز ہے جب ان کے میاں انہیں لے کر گھر روانہ ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہوا۔ بیان کرتی ہیں کہ مجھے گھر دیکھنے کا شوق، لیکن ریاض صاحب ٹالتے جائیں کہ تم صبح آرام سے دیکھنا، ابھی کمروں میں بتی مت چلاؤ، اور اس کی وجہ سمجھ میں آئی جب گھر کے ہر کونے میں منو کوڑا اور گرد و غبار دیکھا، ہر دراز سے میلے موزے اور رومال، ہر جیب سے تھیٹر، سینما، فلور شو کی پرچیاں اور ریزگاری، پینٹری میں 5 دن سے برتن بغیر دھلے پڑے ہیں۔ میاں بجائے برتن دھونے کے نئے برتن نکال کر استعمال کرتے جاتے تھے۔ اس طرح درجنوں موزے، رومال، بنیان خرید ڈالے تاکہ پرانے نہ دھونے پڑیں۔ اب بیگم اختر ریاض الدین نے جب گھر دیکھنے کی خواہش کی تو میاں صاحب نے انہیں روک دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اندازہ تھا کہ گھر کی حالت دیکھ کر بیوی پہ کیا گزرنی ہے، کیونکہ انہوں نے بے تحاشا موزے، رومال، بنیان کی ساری چیزیں خریدی ہوئی تھی، اور گندے جو تھے وہ جگہ جگہ پر پڑے تھے، اور اسی طریقے سے برتن کچن میں نکال کے رکھے ہوئے تھے، اور جو پہلے سے استعمال شدہ تھے برتن انہیں دھونے کی زحمت نہیں کی تھی۔ عمومی طور پہ تمام انسان، لیکن خصوصاً خواتین، ایسے معاملات میں مجموعی طور پہ زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں۔ ان کے لیے یہ سارے معاملات دیکھنا اور انہیں برداشت کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میاں کو اس بات کا کیونکہ اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے روک دیا ہے۔ رات کے وقت میں دیکھنے تھے۔ بہرحال رات کو 2 بجے تک ادھم مچتا رہا، پھر ہمسائے کی گرجدار آواز آئی، خاموش۔ ہم عموماً ہمسائے کی بات نہیں سنتے، لیکن یہ ہمسایہ ہوائی کا مشہور پہلوان اور ہیوی ویٹ چیمپئن تھا، نام بھی تھا ہارڈ بوائڈ ہیگرٹی۔ اب آپ یہ دیکھیے گا، اس لیے اس کی ایک تنبیہ ہی کافی تھی۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ ہمارا من حیث القوم یعنی پاکستانی قوم کا ایک رویہ یہ بھی ہے کہ ہمسایوں کو ہم تکلیف دیتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو اسلامی نقطہ نگاہ میں سے ہمسائے کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق سے بھی شاید بڑھ کر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جیسا کہ ہمارا رویہ اور معاملات میں ہے ویسا ہی ہمارا ہمسایوں کے بارے میں ہے کہ ہمسایوں کو ہم جتنی بھی تکلیف دے دیں وہ جواب میں ہمیں جو مرضی کہتے رہیں، ہم اس پہ کان نہیں دھرتے۔ لیکن کہتی ہیں کہ یہ ہوائی کا ہیوی ویٹ چیمپئن تھا، اور سب سے بڑی بات ان کے نام کا حوالہ دیتے ہوئے ہارڈ بوائلڈ، یعنی اس کے نام کے اندر بھی اتنی ہی سختی اور تلخی تھی جتنا کہ وہ خود بہت بڑی جسامت کا مالک تھا۔ چنانچہ اس کا ایک ہی مرتبہ ہمیں خاموش کہنا ہمارے لیے کافی تھا۔ 2 منٹ کے اندر سب لڑکے لڑکیاں غائب۔ خیر ہم تھکے ہارے سو گئے، واللہ عالم کب اٹھے۔ میاں دفتر جا چکے تھے، اب تھکاوٹ تھی، رات لیٹ سوئی ہیں، وقت کا بھی آگا پیچھا ہے پاکستان سے۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ ہم سوئے اور اس کے بعد کب اٹھے، بہت زیادہ ٹائم گزر گیا۔ میاں دفتر جا چکے ہیں، ناشتہ خود بنایا، زندگی میں پہلی بار خود کھانا پکانا تھا، اس لیے کام کا پتہ ہی نہ چلا۔ اب آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوا۔ اب بیگم اختر ریاض الدین کے میاں کے حوالے سے جیسے کل کے لیکچر میں بتایا گیا کہ وہ اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، چنانچہ ان کے گھر میں ہمیشہ ملازمین کی موجودگی رہی، جبکہ ملک سے باہر جب آپ جاتے ہیں کسی بھی ملک میں، آپ جتنے بھی بڑے آفیسر ہوں آپ نے اپنا کام خود ہی کرنا ہے۔ اسی کا نتیجہ ان کے گھر کی گندگی بھی تھی، کیونکہ میاں ریاض صاحب
बजाय चीज़ें धोने के नई से नए ला के इस्तेमाल करते रहे। और अब बेगम अख्तर यही बात कहती हैं कि अब मैंने क्योंकि खुद खाना पकाना था, चनाचे अब ये मुश्किल काम भी अब मैंने करने का इरादा कर लिया। मेरी बेटी नाजो और मैंने कमर कसकर सारा दिन घर की सफाई की और लंच करीबी होटल में जाकर खाया। रात को भी कुछ ना पकाया। जाले, चूंटियाँ और गर्द हटा हटा कर कमर दुख रही थी। ये जो मियाँ की सात पुश्तों पर एहसान किया था। यानी कहती हैं कि इतना काम कर लिया, ये क्या काम था मियाँ के लिए जो मैं खाना भी पकाती। चनाचे वो मैंने उस वक्त खाना खाने का काम होटल में ही किया। शाम को हम जजीरे का अवलीन मुआयना करने का पाता है। अब शाम हुई है तो वो जजीरे को देखने के लिए पहली मरतबा गाड़ी पर निकले हैं। ढलते सूरज में बहरुल काहिल करवटें बदल रहा था। ये तस्वुर में लाइएगा, ये चंद एक लाइनों में कितने खूबसूरत अंदाज में सफ़रनामा निगार ने उस मंजर को हमारे सामने बयान किया है। और चारों तरफ ज़मुर्द की आमरीत मुस्तहकम हो चुकी थी। अब देखिए, सूरज ढलता हो ना समंदर या दरिया के किनारे, तो यूं लगता है जैसे पानी जो है वो उस रोशनी के अंदर करवटें बदल रहा है। अब इनकी यहाँ पे तशबीहात देखिए जो कि हमारे लिए मज़ीद इस मंज़र को खूबसूरत बना देती हैं कि ढलता हुआ सूरज है और उसके अंदर बहरुल काहिल करवटें ले रहा है। और इसके साथ साथ चारों तरफ ज़मुर्द की आमरीत मुस्तहकम हो गई है। ज़मुर्द बुनियादी तौर पर सब्ज़ रंग का पत्थर होता है, गहरे सब्ज़ रंग का, जैसे घास होती है। अब ज़मुर्द की आमरीत मुस्तहकम हो गई है, यानी हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। ये मंजर जिसकी खूबसूरती को यहाँ पर बेगम अख्तर रियाजुद्दीन ने बयान किया है, हकीकत में आँखों को तरावत देने वाला है। ताहद्दे नज़र सब्ज़ा ही सब्ज़ा। यूँ एहसास हुआ कि जजीरे और वाहों में कोहना मश कायनात नए सिरे से शबाब पा रही है। कहते हैं कि उसे देखकर हमें यूँ लगा जैसे कि कायनात नए सिरे से यहाँ पर अपने उरूज और जवानी पर आ गई है। यानी इतना खूबसूरत मंजर कहती हैं कि मैंने इससे पहले नहीं देखा था। इसके नन्हे मुन्ने रकबे में फितरत का हर रंग, हर अंग पाया जाता था। यानी फितरत मुकम्मल तौर पर इस जगह पर मौजूद थी। समंदर यहाँ अमीक तर होता चला गया है। अमीक तर यानी गहरा। ये जनूबी यूरोप के आबी किनारों से ज़्यादा नीला और चमकीला है। अब यूरोप के जो साहिल हैं ना वो बड़े मशहूर साहिल हैं, लेकिन कहते हैं कि जनूबी यूरोप के जो आबी किनारे हैं ये उससे भी ज़्यादा नीला और चमकीला है। दोपहर के वक्त इस नीलम की भड़क आंखें खिरा करती है। नीलम कहते हैं नीले पत्थर को। अब मुसन्निफ़ा ने यहाँ पे इस तारे के तौर पे पानी को नीलम ही कह दिया है। कहती हैं कि दोपहर के वक्त यहाँ का नीला रंग आँखों को रोशनी की शिद्दत देता है। मैंने वजदानी हुस्न में इस तरह डूबे हुए साहिल बहुत कम देखी है। वजदानी हुस्न यानी जो मार्फत की कुव्वत जिनमें बसी हुई है। यहाँ के कौसारों ने इस जजीरे के गोल चेहरे को एक नया जाविया बख्शा है। ये कहीं संगलाख हैं, कहीं इतने सब्ज के अजली बरसातों का रेन बसेरा मालूम होते हैं। अब अल्फाज का चुनाव देखिए, कहीं पे पढ़ते हुए आपको एक अजीब किस्म की संजीदगी नज़र नहीं आती, बल्कि पढ़ते हुए आप मुसन्निफ़ा के जो तशबीह इस्तारात हैं, मुहावरात हैं और लतीफ़ सा अंदाज है, उसमें गुम हो जाते हैं कि कितने खूबसूरत अंदाज में वो हमें उस सारे मंजर से रोशनास करवा रही हैं। अब देखिए, वो कहती हैं कि यहाँ के कौसार ऐसे हैं कि वो कहीं पे संगलाख यानी सख्त हैं और कहीं वो इतने सब्ज हैं कि अजली बरसातों का रैन बसेरा, यानी रैन बसेरा कहते हैं रात बसर करने की जगह को। अजली बरसातों का यानी जहाँ पर हमेशा बारिश ही होती है, वहाँ पे इतनी सरसब्जी है, इतने सब्ज वो पहाड़ हैं कि वो सरसब्ज व शादाब यूँ महसूस होते हैं कि यहाँ पर सिर्फ बारिश की ही हुक्मरानी है। अगले दिन हम सब ने होनाबा बे पे पिकनिक मनाई। यानी अब वो उस साहिल पे चले गए हैं, उस बे पे गए हैं जिसका नाम होनामा है। वहाँ पर जाकर पिकनिक मनाई है। ये जगह मुझे ऐसी भाई के दौड़ी छूटी इधर ही का रुख करती थी। यहाँ पानी सबसे मुहज़्ज़ब और शफाफ था। ये साहिल आबी मखलूक के लिए मशहूर था और हवाई की यूनिवर्सिटी दुनिया भर में अलूम समंदर में सबकत ले गई है। अब आप देखिएगा कि लाहौर में अलूम समंदर पे अगर काम किया जाए तो कहाँ जाके करेंगे।
कहीं भी नहीं, क्योंकि लाहौर में समंदर है ही नहीं। अब ये काम कहाँ पे हो सकता है? कराची में। यानी काम करने के लिए ज़रूरी है उसके वसाइल मौजूद हों। अब हवाई की जो यूनिवर्सिटी है वो अलूम समंदर में सबकत ले गई है, क्योंकि वो जो साहिल है होनामा बे, वहाँ पर आबी मखलूक बेतहाशा पाई जाती है। चनाचे वहाँ पर होने वाले जो मुख्तलिफ तहकीकी काम हैं उस हवाले से ये यूनिवर्सिटी इंतहाई अहमियत की हामिल है। गर्ज ये कि अव्वल तो कुदरत ने अपने हुस्न के लंगर यहाँ जारी कर दिए थे। जो कुछ कमी थी वो इंसान ने पूरी कर दी थी। उस शाम हम घर का सारा सौदा लेने सुपर मार्केट गए। यानी अब दिन के वक्त घूम फिर लिया है, शाम को सुपर मार्केट गए हैं। बहुत से साहिबान इस इदारे को जानते हैं, लेकिन बहुत सी मेरी हम वतन बहनें इसके मुतल्लिक जानना चाहेंगी। तो सुनिए, सुपर मार्केट अमेरिकन सरमायादारी का मुकम्मल मुजाहरा और अमेरिकन तर्ज हयात का बुनियादी कला और उसकी लामहदूद अफराद का ज़ख़ार है। अब आप देखिएगा कि मुसन्निफ़ा ने एक ही मिसरे में अमरीकी जो निज़ाम है, सरमायादारी निज़ाम और उनका तर्ज ज़िंदगी यहाँ पे बयान कर दिया। कहते हैं कि सुपर मार्केट में जाएंगे ना तो वहाँ पर जाके हमें पता चलता है कि अमेरिका का सरमायादारी निज़ाम क्या है, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ की ऐसी रेल पेल है कि वहाँ पे गरीब के जाने का तसव्वुर नहीं, अमीर बल्कि अमीर तर जो अफराद हैं वही जहाँ वहाँ पर पहुँचते हैं। और अमेरिकन तर्ज हयात का बुनियादी कला है, यानी जो तर्ज हयात अमेरिका में नाफिज है, जिस तर्ज हयात के तहत वो ज़िंदगी गुजारते हैं, उसका अमली नमूना इस मार्केट में नज़र आता है। और लामहदूद अफराद का ज़ख़ार है। अब देखिए, अफराद बजाते खुद बड़ा वसी लफ्ज़ है, लेकिन उसके साथ लामहदूद का लफ्ज़ उसकी वुसअत को और बढ़ा देता है। यहाँ पर बेपनाह चीज़ें हैं, बेपनाह बहुत ज़्यादा चीज़ों का ये ज़ख़ीरा है। जब से ये बरोए ज़मीन बरसरे बेकार हुआ, नन्ही नन्ही दुकानें और छोटे छोटे बसाती पंसारी दिवालिया हो गए। जब से ये ज़मीन पर बना है, यानी इस जगह पर ये मार्केट बनी है, उसके बाद छोटी दुकानें, छोटे बसाती कहा जाता है जो छोटी दुकान लगाने वाले हैं, जिनके पास ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पंसारी भी जिनके पास नमक मिर्च ऐसी चीज़ें होती हैं। कहती हैं कि ये सारे छोटे छोटे दुकानदार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। ये सुपर मार्केट 10 बाज़ारों का महागुरु है। यानी पहले तो 10 बाज़ार जहन में लाइए और उसके बाद उनका महागुरु जहन में लाइए कि महागुरु यानी उनका बड़ा सरदार, 10 बाज़ारों का बड़ा सरदार तसव्वुर में ले आइए, ये कितनी बड़ी मार्केट हो गई। सारी अनारकली और माल रोड की दुकानों का सामान इसकी एक लपेट में समा जाए। अब इससे आप तस्वुर में ले आइए, अनारकली अच्छा खासा बड़ा बाज़ार और मार रोड भी अच्छा खासा बड़ा बाज़ार है, लेकिन कहते हैं कि उसकी सारी दुकानों का सामान इसके एक ही घेरे में आ जाएगा। अब उससे बड़ी जो इसकी वुसअत है मज़ीद आप तस्वुर में ले आइए। आप जब दाखिल हों तो फ़ौरन 4 पहियों वाली ट्राली साथ ले लें कि हफ़्ते 2 हफ़्ते का राशन इसमें डालती जाएं, और जब खुद चलते चलते थक जाएं तो उसमें बैठ जाएं और किसी और से कहें कि आपको खींचे। सिर्फ ये आखिरी नसीहत मेरी इख्तरा है। इख्तरा यानी ईजाद। मुसन्निफ़ा कहती हैं कि जो उसके ऊपर बैठने वाला काम है ना, कहती हैं कि ये मेरी ज़ाती ईजाद है, इसका सचमुच वहाँ पे इतलाक़ नहीं होता। वरना दर हकीकत सुपर मार्केट ऐसी शैतान की आंत है कि दिल चाहता है कि खुद ट्राली में लटक जाएं। इस इदारे की अफराद देखकर इंसान एशिया अफ्रीका की भूख और कहत भूल जाता है। इस जगह बिला ज़रूरत और बिला इरादा खरीदारी करनी पड़ती है। हर शय की 50 किस्में, हर किस्म छत तक चुनी हुई, हर दूसरे कदम में सेल लिखा हुआ, अगर नकद नहीं तो उधार लीजिए। अब आप तसव्वुर में लाइए, यही वो तरीक़ाकार है जिसके तहत सरमायादाराना निज़ाम जो है किसी भी शख्स को अपने कब्ज़े में लेता है। अब पाकिस्तान में भी अब आप बाहर निकल के जा बजा लिखा हुआ देखेंगे कि फ्रिज है, फ़लाँ चीज़ें आसान किस्तों पे दस्तयाब हैं, प्लाट जी आसान किस्तों पे दस्तयाब हैं। ये दरअसल हमारा सरमायादारी का जो निज़ाम है उसका ये तरीका वारदात है, जिसमें एक मरतबा कोई फंस जाए तो उसके बाद वो लाख कोशिश कर ले उसमें से निकल नहीं सकता। और मुसन्निफ़ा यही बात यहाँ पे बयान करती हैं कि ये सरमायादारी का निज़ाम का क्योंकि एक नमूना है। यहाँ पर हर चीज़ जो है, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो बेतहाशा मौजूद है, और अगर आप उसको नकद नहीं ले सकते किस्तों पे ले लीजिए, असल कीमत नहीं दे सकते सेल पे ले लीजिए। अलगर्ज यहाँ पर रुपया पैसा
بے پناہ لے کر آئیں اور بے پناہ خریداری کرتے ہوئے گھر واپس چلے جائیں۔ آپ اسے دیکھیے گا، پڑھ کے دیکھ لیجئے، مزید آپ جو پوچھنا چاہیں اس حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید بات ابھی آپ اسے دیکھیں اور ابھی ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔